Dear student, welcome to the lecture series of software engineering. In today's lecture, we will cover a spiral model and win-win spiral model. If we talk about the spiral model, it is basic evolutionary process model, which is a combination of iterative nature of prototyping model and systematic aspects of waterfall model. Indirectly, we can say that a spiral model covers the benefit of prototype model and traditional waterfall model. This spiral model was first defined by the Barry Boehm in 1988 article, and spiral model was the first model which explains why we required iterations in software development lifecycle. If we talk about the spiral model diagrams, in this model, activities are organized like a spiral that has like there are many spirals. This one, this one, this one. And each spiral represents a cycle in software development. The radial dimension, this one, the radial dimension represents the cumulative cost, and the angular dimensions represents the progress made in completing each cycle of the spiral. Each cycle in the spiral begins with the identification of objects, objectives, alternatives, and constraints. Identification of the object for each cycle and the different alternatives that are possible for achieving that particular requirement, that particular objective, and the constraint which are exist. Next step of each cycle represent the evaluate alternatives, identify and resolve risk. We find out the risks which are involved in that particular phase, in that particular cycle, and resolve that risk. And the focus and third cycle represents the development and verify non-label product. In this step, we develop strategies that resolve the constraints and risks. This step may involve activities such as benchmarks, king simulation, and prototyping. When the software is developed, keeping in mind that risk should be analyzed. Finally, the next stage is the planned stage. In this stage, the review process is also occurred. The important feature of this model is that each cycle of the spiral is completed by the review process, which covers the product developed during that cycle, including plan for the next phase. If we talk about in detail, in each cycle in its first phase is step is determining objective, alternatives and constraint. So in very first cycle, in this cycle, firstly we identify the requirements, objectives, their alternatives and constraint. On the basis of this phase object, on the phases of this step result, we develop a prototype, and that prototype should be analyzed in terms of risk. After that risk analysis, we apply in concept of operations, and in next phase of that particular cycle is in very initial cycle, we review the whole process and plan for the next phase. जैसे ही सेकेंड साइकिल शुरू होगी, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू एंड प्लान विच वी डन इन प्रीवियस साइकिल, हम यहाँ पे अपने अल्टरनेटिव्स ऑब्जेक्टिव्स को अगेन एनालाइज करेंगे. आफ्टर दैट उसके बेसिस पे नेक्स्ट प्रोटोटाइप डेवलप होगा.
उसी प्रीवियस प्रोटोटाइप में एनहांसमेंट करके नेक्स्ट प्रोटोटाइप नंबर 2 डेवलप होगा, उसमें रिस्क एनालिसिस होगी, उस रिस्क एनालिसिस के बेसिस पे नेक्स्ट फेज में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एटसेट्रा किया जाएगा। अब यहां तक फ्रॉम फेज 1 2 3 इस साइकिल के फेज 1 2 3 में जितना प्रोटोटाइप डेवलप हुआ, जितना सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, उसका रिव्यू प्रोसेस होगा फेज 4 में। फेज 4 में रिव्यू प्रोसेस प्लस प्लान फॉर नेक्स्ट फेज होगा। उसी के बेसिस पे नेक्स्ट साइकिल में अगेन जो हमें रिव्यू मिला था, उस रिव्यू के बेसिस पे नेक्स्ट साइकिल के फर्स्ट फेज में हम रिक्वायरमेंट को अगेन आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने कंस्ट्रेंट फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एनालिसिस प्रोटोटाइप 3 डेवलप होगा। और प्रोटोटाइप 3 में डेवलप होने के साथ ही रिस्क एनालिसिस, रिस्क इवैल्यूएशन स्टार्ट होगा। अगेन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिजाइन स्टार्ट होगा थर्ड साइकिल में। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिजाइन का वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, अगेन रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, प्लान फॉर नेक्स्ट फेज होगा, फिर उसके बेसिस पे नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, फिर प्रोटोटाइप डेवलप होगा, रिस्क एनालिसिस होगी, और फाइनली उसमें डिटेल डिजाइन, कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्ट, एक्सेप्टेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन होगा। हर साइकिल में आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने ही हैं। फर्स्ट इनिशियल साइकिल से लेके लास्ट साइकिल तक आपको सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है, ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके रिक्वायरमेंट्स का, प्रोडक्ट डेवलप करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, हर रिक्वायरमेंट का कुछ अल्टरनेटिव प्रेजेंट है या नहीं है, या कंस्ट्रेंट है या नहीं है। सेकेंड, हर साइकिल का सेकेंड फेज में रिस्क इवैल्यूएशन होगा, रिस्क आइडेंटिफाई होगा और उसका रिजोल्यूशन होगा। उसी रिस्क एनालिसिस के बेसिस पे हर साइकिल पे एक प्रोटोटाइप डेवलप होगा, और उस डेवलप प्रोटोटाइप के बेसिस पे नेक्स्ट फेज में जो भी साइकिल का डिजाइन प्रोसेस करना है या यूनिट प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसेस करना है, कोडिंग प्रोसेस करना है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और फोर्थ फेज में रिव्यू प्लस प्लान फॉर नेक्स्ट फेज होगा। रिव्यू प्रोसेस में कस्टमर एज वेल एज डेवलपिंग टीम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। रिव्यू प्रोसेस में डेवलपिंग टीम एज वेल एज कस्टमर दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो उस पर्टिकुलर साइकिल में जितना प्रोडक्ट डेवलप होता है उसको रिव्यू करके नेक्स्ट साइकिल के लिए, नेक्स्ट फेज के लिए प्लान करते हैं। इस रिव्यू में अगर हम बात करें तो 3 डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं रिव्यू प्रोसेस में भी। फर्स्ट आ जाता है डिटरमाइन प्रोसेस, अल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रेंट। अगेन क्योंकि जब आप नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। आप इवैल्यूएट भी करोगे, रिस्क एनालिसिस आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, साथ के साथ नेक्स्ट फेज के लिए नेक्स्ट डेवलप करोगे, वेरीफाई करोगे नेक्स्ट प्रोसेस प्लान को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज अब प्लान कहलाता है एग्जैक्टली, सेकेंड फेज को होता है रिस्क इवैल्यूएशन, एंड थर्ड फेज होता है इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड फोर्थ फेज होता है रिव्यू फेज। रिव्यू फेज, ठीक है। यहां पे जैसे जैसे एक एक साइकिल क्रिएट होगी, एक एक साइकिल कंप्लीट होगी, दूसरी साइकिल बढ़ती जाएगी। ये साइकिल, ये प्रोसेस आपकी तब तक कंटिन्यू होती है जब तक आपका फाइनल ऑपरेशनल प्रोटोटाइप निकल कर ना आ जाए, और वो फाइनल ऑपरेशनल प्रोटोटाइप में कोडिंग, टेस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन, इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हम स्पाइरल मॉडल को कब यूज करते हैं, तो बेसिकली स्पाइरल मॉडल वहां पे यूज किया जाता है जहां पे रिस्क इवैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिस्क प्लस कॉस्ट। क्योंकि स्पाइरल मॉडल में हर फेज के दौरान रिस्क इवैल्यूएट हो रहा है, ठीक है। लाइक इसरो प्रोजेक्ट, इसरो के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं,
उन प्रोजेक्ट में रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, तो वहां पे हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। लाइक कोई भी आपका डीआरडीओ प्रोजेक्ट हुआ या आपका नासा प्रोजेक्ट हुआ जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क प्लस कॉस्ट दोनों एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर कंसीडर किए जाते हैं, वहां पे स्पाइरल मॉडल यूज होता है। मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए बेटर है। दूसरा ये आता है जहां पे हमें रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम इंश्योर नहीं है, हमें नहीं मालूम कि रिक्वायरमेंट ए होगी ही होगी या रिक्वायरमेंट बी ही होगी, या इस पर्टिकुलर फेज डेवलपमेंट के बाद क्या रिक्वायरमेंट आएगी, वी डोंट नो। जहां पे रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है वहां पे भी हम स्पाइरल मॉडल को यूज करते हैं। और जनरली रिक्वायरमेंट्स क्लियर ना होना बहुत ज्यादा रिस्क वाले प्रोजेक्ट्स और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में होता है। रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, समझने में दिक्कत होती है, और सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड। हर एक फेज के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि एक प्रोसेस एक फेज पूरा हो गया और उसके बाद रिव्यू प्रोसेस के दौरान कुछ नए चेंजेस आ गए, न्यू चेंजेस आ गए, न्यू फीडबैक्स आ गए। उन फीडबैक्स के बेसिस पे हम चेंजेस कर सकते हैं, इजीली हम चेंजेस कर सकते हैं। अब अगर हम फेजेस को एक्सप्लेन डिटेल में करें तो फर्स्ट फेजेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, प्लान फेज in which we determine the objectives, we determine the alternatives and constraint of the project, and that should be in documented, that should be in document form. Second phase is risk analysis. This phase is risk analysis. In this phase, we find all possible alternatives which can help in developing a cost-effective projects are analyzed. Also find the possible risk and resolve them, which can be occurred in overall project development. Third phase is engineering phase. In this phase, actual development is carried out. एक्चुअल प्रोजेक्ट डेवलप जो हो रहा है वो इस इंजीनियरिंग फेज में ही अकर होता है, एंड द आउटपुट ऑफ दिस फेज पास थ्रू ऑल द फेजेस इटरेटिवली इन ऑर्डर टू obtain improvement in the same. As I have already told that कि जब आपका इंजीनियरिंग प्रोसेस तक एक साइकिल आपकी एक एक स्टेप करके इंजीनियरिंग प्रोसेस पे पहुंची, तो इंजीनियरिंग प्रोसेस पे जो डेवलप्ड प्रोजेक्ट हुआ वो रिव्यू होने के लिए फोर्थ फेज पे जाता है। और जब वो रिव्यू होता है तो वहां पे कस्टमर एज वेल एज डेवलपिंग टीम बोथ इन्वॉल्व होते हैं। और रिव्यू होने के लिए वी शुड नो एग्जैक्टली व्हाट आर द objectives, what are the alternatives, constraint, what are the risks already involved which we have analyzed in phase 2, and what are the requirements developed, verification and next level process plan. तो रिव्यू फेज में जो फोर्थ फेज है, रिव्यू फेज में इंजीनियरिंग फेज का जो आउटपुट है, जो जितना भी डेवलप्ड हुआ है वो प्रोडक्ट, वो सारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिस्क इवैल्यूएशन और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है उसके बेसिस पे रिव्यू होता है। ओके, नेक्स्ट आता है कस्टमर इवैल्यूएशन। कुछ जगह आप इसे कस्टमर इवैल्यूएशन बोलोगे सीधे, कुछ जगह सीधे सीधे रिव्यू प्रोसेस लिख होता है, कहीं पे हम इसको प्लान नेक्स्ट फेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस फेज डेवलप्ड प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन द कस्टमर in order to receive customer comments and suggestion. This phase is very much similar to testing phase because अभी तक की इस साइकिल में अभी तक जितना काम हुआ है उन सबके बेसिस पे हम इसको रिव्यू करते हैं। ओके, तो एक साइकिल कंप्लीट हुई, जब पहले फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुई उसमें बेसिक लेवल की रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुई, बेसिक लेवल का प्रोटोटाइप बना, उसका रिस्क एनालिसिस हुआ, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन ऐड किया गया एंड देन रिव्यू के लिए भेजा गया। रिव्यू फीडबैक के बेसिस पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिटेल में हुई, उस डिटेल रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बेसिस पे प्रोटोटाइप डेवलप हुआ जो कि एडवांस वर्जन होगा प्रीवियस साइकिल से।
रिस्क एनालिसिस हुई और उस रिस्क एनालिसिस और प्रोटोटाइप के बेसिस पे रिक्वायरमेंट वैलिडेशन और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट उसमें ऐड ऑन किया गया। अगेन रिव्यू प्रोसेस के बाद जो फीडबैक मिला उसके बेसिस पे हमने अपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिटेल करी, रिस्क एनालिसिस और डिटेल कर दिया और एक नेक्स्ट प्रोटोटाइप डिजाइन कर दिया। और नेक्स्ट प्रोटोटाइप में फिर आगे के डिजाइनिंग, कोडिंग एटसेट्रा फेजेस हमने डिटेल में अप्लाई करे और फिर उसके बाद फाइनल रिव्यू प्रोसेस के दौरान उसको डिलीवर्ड कर दिया। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो आता है वो यही आता है कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स कैन अकोमोडेटेड। जितनी रिक्वायरमेंट्स आप चेंज कर सकते हो, हर एक साइकिल के कंप्लीट होने के बाद रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है रिव्यू प्रोसेस के दौरान। दिस प्रोसेस समटाइम्स यूज एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रोटोटाइप। हर बार एक प्रोटोटाइप बन रहा है, हर साइकिल में आप एक प्रोटोटाइप बना रहे हो। एक इनिशियल साइकिल से लास्ट साइकिल तक आप एक प्रोटोटाइप बना रहे हो। तो प्रोटोटाइप जीरो से लेकर आप प्रोटोटाइप एंड तक डेवलप कर रहे हो। अगर आप इतने हर फेज में जब आप प्रोटोटाइप बना रहे हो तो उस केस में एरर और सिस्टम के फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स कैन बी कैप्चर्ड मोर एक्यूरेटली। फीडबैक प्रोसेस है, रिव्यू प्रोसेस है, डिस्कशन हो रहा है, हर बार हर फेज के डेवलप होने पे फीडबैक लिया जा रहा है एंड रिस्क इवैल्यूएट हो रहा है। तो रिक्वायरमेंट्स आपकी प्रॉपरली ऑब्वियसली एक्यूरेटली कैप्चर्ड होंगी। यूजर सी द सिस्टम अर्ली ड्यू टू द प्रोटोटाइप। हर फेज में जब आपको सिस्टम का प्रोटोटाइप मिल रहा है तो आपको आइडिया है, यूजर को आइडिया है कि किस तरीके का मेरा सिस्टम डेवलप हो रहा है। अर्ली एंड फ्रीक्वेंट फीडबैक फ्रॉम यूजर with the help of review process. If we talk about the disadvantages of a spiral model, तो we cannot exactly find कि end of the project may not be known early. Why? हमें नहीं मालूम कि इस प्रोजेक्ट का एंड कब होगा। क्यों? क्योंकि हर फेज में जब रिव्यू फेज स्टार्ट हो रहा है तो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, उसके बेसिस पे नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हुई। अगेन कस्टमर ने कुछ फीडबैक दे दिया, डेवलपिंग टीम ने कुछ और फीडबैक दे दिया, अगेन आपको फिर से साइकिल रिपीट करनी है, फिर से साइकिल रिपीट करनी है। तो वी कैन नॉट से कि प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कब फिनिश होगा। Not this type of approach, spiral model approach, is not suitable for small or low risk projects. And this process is becomes complex क्योंकि इतने स्पाइरल समटाइम्स स्पाइरल्स में गो इनडेफिनेटली, कितने जाएंगे हमें नहीं पता, क्योंकि जितने बार रिव्यू में चेंजेस आ रहे हैं, जितनी बार चेंजेस आ रहे हैं उतनी बार आपको नेक्स्ट साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाती है एंड द स्पाइरल्स ऑल्सो मे गो indefinitely. Risk assessment expertise is required. हर साइकिल के सेकेंड फेज में रिस्क इवैल्यूएट हो रहा है और रिस्क इवैल्यूएट करने के लिए आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत होगी। Now come to the win-win spiral model. Basically, win-win spiral approach or win-win spiral model is an extension of the spiral approach or spiral model. The phases in this approach is same as the spiral approach. The basic idea जो हमने spiral model में spiral approach में use करा था, same idea, same phases, same approach हमें win-win spiral model में भी use करते हैं. But the basic difference is that at the time of identifying the requirements, the development team and the customer team hold a discussion and negotiate on the requirements that needed to be included in the current iteration of the software. Basically अगर हम बात करें तो इस मॉडल में कस्टमर्स इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड हो जाता है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कस्टमर का एज अपेयर टू स्पाइरल मॉडल, जिसे हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। और स्टेक होल्डर्स और डेवलपिंग टीम के बीच में एक डिस्कशन होता है जिसमें रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे नेगोशिएशन किया जाता है। In the approach is called win-win because it is a winning situation of the development team and also for the customer.
Why we call this approach is win-win? Because negotiation के दौरान एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट, एक ऐसा पर्टिकुलर एग्रीमेंट तैयार होता है, एग्रीमेंट होता है जिसपे कस्टमर एंड डेवलपिंग टीम बोथ एग्री होते हैं. Customer wins by getting the product that fulfill most of the requirements, while the development team wins by delivering software which is developed with all the requirements established after negotiations with the customer. If we talk about the spiral model, यहाँ पे in this model following activities are defined. First one is identification of the system or subsystem key stakeholders. We find out exactly what are the key stakeholders in this project. That key stakeholders are those persons which directly or indirectly involved with this product or this project. In second phase, we determine the stakeholders win condition. After the negotiation between customers and developers, we find that particular point जहां पे आके customers and developing team agree होते हैं. That point is known as win condition for both the customers and for stakeholders also. स्टेक होल्डर सेटिस्फाई होता है कि ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में मेरी ये रिक्वायरमेंट्स डेवलप होंगी, ये रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मेरा प्रोजेक्ट डेवलप होगा. डेवलपिंग टीम एग्री होते हैं कि ठीक है, वी कैन डेवलप दैट प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स. तो सेकेंड फेज में हम बेसिकली वो पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, वो कंडीशन फाइंड आउट करते हैं जहां पे कस्टमर एज वेल एज डेवलपर बोथ एग्री होते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज विन कंडीशंस. In third phase, we reconcile the win conditions, and according to that particular condition, we establish next level objectives, constraint and alternatives. सेकेंड फेज में जो विन कंडीशन हमें मिली है, उस कंडीशन के बेसिस पे, उस कंडीशन को एनालाइज करके हम नेक्स्ट लेवल के ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रेंट्स एंड अल्टरनेटिव्स को एस्टैब्लिश करते हैं, डिस्कस करते हैं. And on the basis of these alternatives and objectives, we evaluate our process, product alternatives and risk, and also resolve those risks. After risk analysis, we define next level of product process, including partition. And after that, we do validate the product and process definition and do the review and comment. If we compare win-win spiral model to spiral model, तो mainly difference जो आ रहा है वो इन 2 phases का आ रहा है. फर्स्ट फेज जिसमें हमें स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं, सेकेंड फेज स्टेक होल्डर्स के और कस्टमर के बीच नेगोशिएशन के बाद, स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स एंड डेवलपर्स के बीच नेगोशिएशन के बाद वो विन कंडीशन फाइंड आउट करनी है. और थर्ड फेज जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसके फर्स्ट फेज में उस विन कंडीशन को रिकाउंसिल करना है, इवैल्यूएट करना है, और उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रेंट, अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, रिस्क इवैल्यूएट करना है, नेक्स्ट लेवल के प्रोसेस इंक्लूड करनी है, डिफाइन करनी है, वैलिडेट करना है प्रोडक्ट को, एंड देन रिव्यू एंड कमेंट. यहाँ पे भी सेम स्पाइरल मॉडल की तरह ऑब्जेक्टिव, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग फेज एंड रिव्यू फेज सारे फेजेस होते हैं. और हर फेज में, हर साइकिल में ये सारे फेजेस फॉलो होंगे, फ्रॉम वेरी इनिशियल साइकिल टू लास्ट, जब तक प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट होके इंस्टॉलेशन उसका नहीं हो जाता, इम्प्लीमेंट होके डिलीवर्ड नहीं हो जाता वो प्रोडक्ट, तब तक हर साइकिल में ये सारे फेजेस आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं. सपोज फर्स्ट साइकिल में हमने स्टेक होल्डर्स फाइंड आउट करे, उस स्टेक होल्डर्स के बेसिस पे विन कंडीशन फाइंड आउट करे, विन कंडीशन के बेसिस पे रिजॉल्व, रिकाउंसिल करा विन कंडीशन को, ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव्स, कंस्ट्रेंट फाइंड आउट करे, रिस्क इवैल्यूएट हुआ, प्रोटोटाइप क्रिएट हुआ, प्रोटोटाइप डेवलप करने के बाद उसमें इंजीनियरिंग अप्लाई की गई, उसमें वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, जो भी जिस भी साइकिल में है वो
प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करा, प्रोडक्ट को वैलिडेट करा, वैलिडेट करने के साथ रिव्यू एंड कमेंट। इस रिव्यू एंड कमेंट फेज जो 7th है, उस फेज का जो आउटपुट होगा उसके अकॉर्डिंग अगेन स्टेक होल्डर्स का आइडेंटिफिकेशन, नेगोशिएशन, विन कंडीशन, अगेन सेम प्रोसेस। तो ये साइकिल आपके, ये स्पाइरल्स आपके रिपीट होते रहेंगे जब तक आपका फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। अब अगर हम बात करें विन विन स्पाइरल मॉडल में, तो फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द सिस्टम स्टेक होल्डर्स एंड देयर विन कंडीशंस। Stakeholders can be anyone in the organization that has a direct business interest in the system or product to be built. And these stakeholders will be rewarded for a successful outcome or criticized if the efforts fail. Recounseling win condition through negotiation to arrive at mutually satisfaction set to objective, constraint and alternatives for the next level. In next level, we evaluate the product, we evaluate the process alternatives and resolve the risk. After that, we define next level of product and processes including partition. Next phase, validate product and our process definition, and finally review, commitment and comments. If when we talk in win-win spiral model, so win-win spiral model basically introduces three process milestones, and these milestones are called anchor point. And these anchor points help to establish the completion of one cycle around the cycle and provide decisions milestone before the software projects proceeds. And these anchor points are, first one is the life cycle objective. Basically in life cycle objective, we find what should the system accomplish, or in other words, we define a set of objectives for each major software engineering activities. Second point is life cycle architecture, in which we exactly find what is the structure of the system. In this system, we establish objectives that must be met as the system and software architecture is defined. And final is the initial operational capabilities, in which we first release, the first version of product is released. This phase represents a set of objectives associated with the preparation of the software installation, with the preparation of the prior installation, and assistance required by all parties that will use the support the system or software. So this is basically a win-win spiral model. If we talk about advantages and disadvantages of win-win spiral model, so they are same as in spiral model, but spiral model में stakeholder के involve, win-win spiral model में stakeholders का involvement आ जाता है, जबकि spiral model में stakeholders का involvement डायरेक्टली डेवलपमेंट साइकिल में नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को स्पाइरल मॉडल और विन विन स्पाइरल मॉडल अब क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू मे राइट मी at garima.singh@absit.in. Thank you so much.